Good morning to each and everyone. Good morning. So I want to share with you real life example which is related to fraud in digital world. So girls, there is a friend of mine. He has his own business. He has his own homestays. एंड वो मेरे साथ अपने फ्रॉड मैसेजेस एंड स्पैम्स काफ़ी शेयर करते हैं अपने इंसिडेंट्स के उनके साथ क्या क्या होते हैं. सो वो मुझे बताते हैं कि वन डे ही रिसीव अ मैसेज ऑन फेसबुक फ्रॉम अ फॉरेनर with well reputed profile picture on Facebook, and she confirmed her booking for stays on Facebook. Next day उन्हें मेरे फ्रेंड को कॉल आती है एयरपोर्ट से, किसी एयरपोर्ट स्टाफ से, एंड ही सेड सर योर कस्टमर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, एंड इनके पास इनकी करेंसी ज़्यादा है तो ये कन्वर्ट करने में एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज शी इज़ योर कस्टमर एंड ये आप ही को इस कंट्री में जानती, तो आपको ही इनके बदले का पे करना पड़ेगा 15,000 to 20,000, और इनके पास यहाँ की इंडिया की करेंसी नहीं है तो ये आप ही यहाँ पे इनका पे करेंगे इनका बदले का. सो वेल इट इज़ क्वाइट कॉमन नाउ डेज. So myself Shivani Parmar, and our given topic is safety in the digital world. Now I would like to call my teammate Mahima Gunsola to give us more information about digital world. Morning to one and all present here. Honorable juries, my name is Mahima Gunsola and I am presenting group number 5. According to the topic that has been given to us, that is safety in the digital world, I have prepared this PPT presentation. First of all, why did this? What has come to our mind? Question arises that what is digital world? We all are familiar with these terms, digital and world. Many of us we may confused about what about the topic? What is the topic? So here it is. Digital world means interconnected digital devices, media, or any other marketing services 24/7 that are available. Digital world is something is referred to as the world of technologies. It's different from the primitive world. Okay, with the time we have developed and invented so many technologies that are helping us nowadays. So moving forward, there are some positive aspects of digital world. First is fast communication. We all are aware about the social media. We can type or text, we can send videos within a second or within a minute. Next is effective education. Lots of mediums of communication or lots of mediums of technologies are used in schools, like interactive smart classes. Online teaching is preferred. So it's very important to learn all these techniques. Nowadays is very important. Now, the next is e-commerce. What is e-commerce? Buying and selling of goods and services on internet, and many transaction is done through that. We can pay our bills. We can reserve our flight tickets, bus tickets, and railway tickets, and many other things. Next is industrial revolution. Technologies have played a vital role in this revolution of industries. Technologies improve efficiency of production and quality of products. Next is medical field. Use of technologies, you can see lots of machines in medical field. Doctors are able to diagnose a disease and prepare the antibodies against them. Next is research and development. Science has progressed lots in every field. You can see every field. Scientists are we have successfully completed our mission Chandrayaan-3 as we all know, right? Now, if moving forward, I have some negative aspects. If we are talking about the technologies, if it has advantages, so it has disadvantages too. So first is terrorism and cybercrime. Terrorists use the internet and other social media to promote their good. Especially they target the young generations. They try to hack the security system of other countries. Next is privacy concern. All the data and information we are so much reliable on our
these phones and computers, and we don't have time to manage and control all this information. Next is manipulation of digital data. There are lots of editing data, editing tools available online. We can simply, with easy way, we can edit the photos, videos, etc. And through this, many people are blackmailing the other people. We all know. Next is fake accounts. We all are aware about these fake accounts. People blackmails by making fake IDs, by hiding their IDs. They use the other name. They blackmail the other people. Next is excessive brands and gadgets. We all are aware. We all are, and I'm also reliable on these gadgets. We all are the same. Next is addiction. Addiction. One is positive and second is negative addiction. We can see the younger generation are so much addicted to the gadgets and especially the games. No? Few years ago we come to know about the blue whale game, right? It's called suicide game. They target the younger generation. They give 50 days task, okay? And if not completed, they blackmail the particular individual. Here are some basic things that we have to keep in mind while we are using digital technology. First is do not share personal details of bank like ATM number, PIN, your OTPs, etc. Next is don't download the fake apps and don't give access to every app, your information, your photos, your galleries. Next is don't share your personal information on social media. Don't touch any fake links that are sent to your number from unknown numbers. Thank you so much. Now, I would like to invite my teammate, my senior, Miss Varsha. She will elaborate the given topic and give some relevant examples. Hello everyone, my name is Varsha. I will present an example on behalf of my group. So the example is phishing. तो मैं पहले बताऊंगी phishing क्या है. Phishing है तो हम डिजिटल वर्ल्ड में हमारे साथ जो स्कैमर फ्रॉड होता है, साइबर क्रिमिनल्स के साथ, मतलब हमारे साथ फ्रॉड करता है जो होता है ईमेल से, फोन कॉल से होता है, एसएमएस से होता है. तो मैं इस phishing के कुछ टाइप्स बताना चाहती हूँ. एक है स्पैम phishing, इसमें जैसे इंडिविजुअल को पर्सनल अटैक करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करता है. फिर मेनली किसी को किसी हाई क्लास वाले हाई प्रोफाइल वाले ऑफिसर्स डिटेल्स को हैक करने की कोशिश करता है, उनके साथ वो हैक करता है, उनकी प्रोफाइल को यूज करता है लोगों के साथ स्कैम करने के लिए. और एक ईमेल फिशिंग जिसमें वो ईमेल के थ्रू एक ऐसी वेबसाइट उनको ईमेल पे भेजता है जो ये आइडेंटिफाई मतलब ऐसी कंपनी होती है, पॉपुलर कंपनी, तो उससे रिलेटेड एक लिंक को भेज देता है उसकी ईमेल पे, जिस लिंक पे वो भी ट्रस्ट कर देता है, अट्रैक्टिव ऑफर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग जैसे उनको भेजता है, तो वो इजीली ओपन कर देता है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी वाली इन्फॉर्मेशन कर देता है, जिससे उनका जितना भी पर्सनल डेटा है उनके पास कम जाता है, फिर पूरे सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाता है जिससे उनका डेटा हैक हो जाता है. और एक है फिशिंग, जो एसएमएस के जरिए एक एसएमएस करता है, तो एसएमएस के थ्रू वो उनका डेटा को हैक कर देता है, लोग उनके ईमेल को ओपन कर देता है, मेल को ओपन करता है. नाउ मैं गुड नंबर दूंगी इन फर्दर अनदर एग्जांपल इज कंफर्म. जल्दी. And present is another malware virus. What is malware virus? Malware virus है. Malware virus एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट इंस्टॉलेज जो ऐप होते हैं उसमें डेटा चुराने तथा उनसे पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करने का एक ऐप होता है. ये साइबर क्राइम को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. तो malware वायरस की कुछ टाइप्स हैं जैसे कि वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन, स्पाइवेयर और एडवेयर. तो वायरस की नॉर्मल से वायरस होते हैं यह कंप्यूटर सिस्टम में जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम में एक लिंक या एक ईमेल द्वारा अटैच किया जाता है, डाटाबेस अटैच किया जाता है
जल्दी से। Hello everyone, my name is Neha and I am presenting another example of cybercrime. Cybercrime एक होता है किसी का पर्सनल डाटा चोरी कर लेना या किसी को ऑनलाइन ब्लैकमेल करना, किसी के बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे कि हैकिंग। देखिए हैकिंग में ये होता है कि किसी के हमारी आईडी को कोई और भी यूज कर रहा होता है विदाउट हमारी परमिशन। हैकिंग कहा जा सकता है। एक होता है ये ऑनलाइन बैंक रॉबरी। ऑनलाइन बैंक रॉबरी ऐसा होता है कि जैसे कोई हमें अननोन नंबर से फोन करता है कि हम बैंक वाले बोल रहे हैं, तो अब हम ये समझते हैं कि पैसे को अनएजुकेटेड पीपल ये करते हैं ज़्यादा, तो आजकल एजुकेटेड पीपल ये करते हैं और हम अपने सारी अकाउंट नंबर सब कुछ में दे देते हैं कि हाँ भाई ये हमारे बैंक से बोल रहे हैं। तो इस वजह से हम हमारा बैंक का सारा अकाउंट का सब बैक आउट करता है। ऑनलाइन बैंक रॉबरी होती है। एक होती है बैकएंड हैकिंग। बैकएंड हैकिंग में हमारा खुद का भी पर्सनल फोन होता है, उसका भी पर्सनल कैमरा हैक हो सकता है, जिसमें हम उस टाइम अपने फोन से क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब फोटो खींच रहे हैं, किस तरह से फोटो खींच रहे हैं, वो कैमरा तक हैक हो सकता है। एक होता है वेब हैकिंग। वेब हैकिंग में ये होता है कि कोई लीगल वेबसाइट में इलीगली पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है और अपना काम निकाल लिया जाता है, लेकिन जो रियल वेबसाइट होती है उसे छेड़ा तक नहीं जाता। Now my junior from our time. Hello everyone, my name is Sonakshi and I am going to present you some credentials from digital fraud. Digital fraud एक व्यक्ति या अन्य जो इंटरनेट के माध्यम से जो फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उसे डिजिटल फ्रॉड कहते हैं। फिशिंग हैकर्स, ऑनलाइन चोरी, लेन देन की जानकारी के समय चोरी, ये सब डिजिटल फ्रॉड में आते हैं। हमें अपनी डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। डिजिटल फ्रॉड में हमें अपनी जानकारी, पर्सनल जानकारी को शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें किसी हैकर से बचने के लिए अपने ईमेल या किसी मैसेज पर किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए बिना जांच किए। यदि हम किसी लिंक पर बिना जांच किए क्लिक करते हैं तो यदि हमें कुछ गलत लगता है तो उसको रिपोर्ट कर देनी चाहिए। हमें अपने डाटा को सिक्योर करना चाहिए। डाटा सिक्योर करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर या अपने फोन को अच्छे डिवाइस, अच्छे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहिए, जिससे हमारा फोन सिक्योर रह सकता है और हमें अपना डिवाइस को मॉनिटर करना चाहिए। हमें यदि कुछ लगे कि हमारे साथ कुछ गलत या कुछ गलत मैसेज आ रहे हैं तो हमें सीधा रिपोर्ट कर देनी चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। तो आई कम माय टीम मेंबर मैं आपको हमारे ऐप के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको हो रही है तो मेरे ऐसे देख सकते हैं ऐप 66 के अकॉर्डिंग अगर हमारा भी यूज कर रहा है या उसको गलत तरीके से कर रहा है तो हम ये ऐप दे सकते हैं। और 68 ऐप के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर, अगर कोई हमारा ये हमारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो हम यहाँ एक्सेस का वो कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। गलत तरीके से कोई हमारे है तो हम यहाँ एक्सेस का लागू कर सकते हैं। के लिए अगर हमारे कोई एक प्रोफाइल बना रहा है तो उसके लिए सील कर सकते हैं। 67 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से अगर बच्चों द्वारा फेसबुक वीडियो कर रहे हैं हमने अपनी
आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ So, as a team leader, now I'm going to conclude our topic. The first one is think twice before sharing your personal information on digital world. And just as you lock your door at your home, same lock your digital profile too in digital world. And the third thing is treat your password keys to your digital kingdom. And the last one is educate yourself and your loved ones to the safety in the digital world because it is important for us. Thank you so much. इतने लंबे पल्स सबके सब पक गए होंगे. Now, excited. Let's proceed to the presentation. 1, 2, 3, start. A very cheerful good morning to everyone, and a very warm greetings to respected trainer, Professor Anubha Nagalya ma'am, and to our sociology professor, Afroz sir. Today, I, Sharyaswini, the narrator of the presentation on the topic body language. And our group is consist of 8 members, Jagriti, Aarti, Rachna, Shidra and Sanvi. So topic is, as you know, body language. So I would start with the introduction. What is body language? Body language is a type of communication. Communication is 2 types, verbal and non-verbal communication. When we communicate, we don't just communicate with verbal communication, we also use the non-verbal communication. Non-verbal communication consists of facial expressions, head movements, and our appearance, how we carry ourselves. Now, the rest is over to my teammate, Jagriti. Thank you. Body language is a non-verbal communication. Body language thinker is a good excellent of body language. Types of body language: facial expression, behavior, posture, gesture, space, touch, feel. The study of body language is kinesics, sound, closeness, body contact, facial expression, and many. Thank you. Next, हाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन गो रॉन्ग. तो हम कभी कभी अपने आई कांटेक्ट द्वारा कई सारी बातें बोल जाते हैं. और जैसे हम कभी आई कांटेक्ट करते हैं या फेस एक्सप्रेशन, कभी हमें गुस्सा आ रहा है तो उससे हमें मतलब हमारे फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है और आई कांटेक्ट से भी पता लग जाता है कि ऐसा हो रहा है. और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, फिर उसमें नर्वसनेस भी दिखाई देती है. एंड फॉरवर्ड टू Good morning, all of you. Myself, Rachna Rawat. Our topic is body language. How to improve non-verbal communication. Make perfect eye contact. तो हमें आई कांटेक्ट सही होना चाहिए. हमारे किसी को हम घूर के नहीं देख सकते, उससे आई कांटेक्ट हमारा बेकार हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. एंड be aware of body language. मतलब हमें अपने बॉडी लैंग्वेज के प्रति अवेयर होना चाहिए. उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज का हमारा परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए उसमें. फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी झूठा नहीं होना चाहिए. जैसे हम खुश होने पर दुख का फेस बनाते हैं, सैड का फेस बनाते हैं, हैप्पी होने पर सैड होने पर हैप्पी का फेस बनाते हैं. तो हमें ऐसा झूठ वाला एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए, उसमें हमें सच करना चाहिए. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. हमें अपनी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी रखनी चाहिए. उसमें कोई
कमी नहीं रखनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू। फॉरवर्ड टू अर्चना। Good morning to all of you. My topic is, my group topic is body language. Body language. To develop your emotional awareness. तो हम इसमें अपनी भावनात्मक जागरूकता को विकसित कैसे करें, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। तो इसके मेन पॉइंट्स है, एक तो हम टाइम कंट्रोल करेंगे, सेकंड गो टू कोर्स, और थर्ड है इसमें जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट, और इसमें हम समय को भी नियंत्रित करेंगे और आत्म जागरूकता भी लाएंगे। और सबसे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है अच्छी आदतों को ग्रहण करना, ये इसका मेन टॉपिक है। तो हम अपने बॉडी लैंग्वेज में इस टाइप के चेंजेस ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। Now we are going to show you a play which tells you about the body language, how body language affects you in a positive and negative manner. So our participants of group is Kumkum, Kumkum, Sanvi and Shidra. Kumkum is taking an interview for a job, and Sanvi, please come. Shidra, please come. Sanvi is playing a positive character role, a positive body language, and Shidra is playing a negative body language. With the help of this play, you all are get to know about how the body language affects ourselves. Thank you. Now we are starting the play. Good afternoon, everyone. We look to present you a situation, and the situation is your car has a breakdown on the highway. You are stranded and the nearest town is 20 kilometers away. How would you handle this? It is a situation कि आपकी कार खराब हो गई है हाईवे में, और आप ऐसे हाईवे में हो जहाँ से आप निकल भी नहीं सकते, और जहाँ आपको जाना है वो 20 किलोमीटर दूर है। तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? पहली बात, अगर आप कार चला रहे हो तो यू मस्ट नो सम बेसिक्स। अगर वो खराब हो भी जाती है, यू मस्ट नो रीजन ऑफ द ऑप्शंस टू फिक्स इट, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल, सीक फॉर द हेल्प। अगर हमारी कार किसी हाईवे पर खराब हो जाती है तो हमें उसको पहले तो सेल्फ हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर सेल्फ हेल्प लेगी तो उसके बाद अगर सेल्फ हेल्प लेगी तो आसपास किसी से ट्राई करना चाहिए कि कोई आसपास का अच्छा मैकेनिकल मिल जाए।
Anshika Rastogi, I representing my team. Our topic is goal setting. What is a goal setting? Goal setting क्या है? जो भी कार्य करने के लिए हम अपने कुछ महीनों एवं कुछ साल के लिए प्लान करते हैं, जिसमें हमारा कुछ मकसद होता है कि हम इन सफलताओं को हासिल करेंगे, वो हमारी गोल सेटिंग में गोल प्लानिंग बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। जिसके गोल एक लॉन्ग टाइम होते हैं, जिसकी एक डेड टाइम भी होती है, और हम अपनी लाइफ को बिना गोल में नहीं जी सकते। गोल सेटिंग की अब बात आती है, हम गोल सेटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि गोल सेटिंग करके हम उस फेज में जाते हैं जिसमें अपनी एक सफलता होती है। एग्जाम्पल है कि एग्जाम में टॉपर होना, एक्स्ट्रा बॉडी फिट होना, कामयाब बनने के लिए गोल सेटिंग जरूरी है। अपनी बुद्धि और समझदारी के लिए गोल सेटिंग जरूरी है। सही मार्ग पर बढ़ने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, जिसमें हम अपना लक्ष्य बनाए, नहीं तो दूसरों का लक्ष्य हम खुद अपने लक्ष्य मान लेते हैं, जिसमें लोगों के हम आ जाते हैं, उनका लक्ष्य हम खुद को मान लेते हैं। बट नहीं, हमें खुद को पहले से ही लक्ष्य बना के चलना चाहिए, जो हम एक ही बात पे ध्यान दें। Now we talk about setting goals. Now we talk about setting goals. By setting goals, you represent and now we talk about setting goals. By setting goals, you are represent your target to aim. Smart, specific, measurable, achievable, and realistic and large time based. First is specific. Specific का मतलब होता है स्पष्ट, अपने कार्य के प्रति स्पष्ट होना। Second is measurable. Measurable का मतलब होता है अपने कार्य के प्रति उसको मापा जा सके, अपने कार्य को मापा जा सके। Third is achievable. अपने कार्य को अचीव करने का वो होना चाहिए, अपने कार्य को अचीव करने का योग्य होना चाहिए। Third is fourth is specific. Third is realistic. Realistic का वास्तव है या नहीं। And last is time bound. अपने समय के प्रति उसकी डेडलाइन होनी चाहिए। गोल ऐसी जगह है जहाँ यह याद रहे हमारा सॉफ्टवेयर कोई समय निर्धारित करता है। Good morning, teachers and all my friends. My name is Radhika Bartwal and I am group 3. My topic is woman empowerment and इसमें हम आपको woman empowerment मतलब महिला सशक्तिकरण, इसमें हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि किस तरह एक माँ अपनी बेटी को स्कूल जाने से रोकती है, उसे आगे पढ़ने नहीं देती है, और हम आप सभी के सामने एक रोल प्ले करना चाहेंगे। कहाँ है आपकी बेटी? फिर बताओगे कि मेरे भाग्यवान आ जाएगी, तुम इतने परेशान हो रहे हो, कहीं फंस गई होगी। माँ मैं आ गई। पिताजी आपको पता है आज क्या हुआ? आज हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जिसमें महिलाओं को करियर सिक्योरिटी के बारे में एक प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें प्रथम आने
अरे किसी ने तो फर्स्ट आया तो चलो टीवी देखते हैं चलो। माँ मैंने खाना बना लिया, मैं पढ़ने जाऊँ? जब खाना बना ही लिया है तो परोस के भी ले आ। जी माँ लाती हूँ। अरे पिंकी तूने क्या कर दिया? तू एक काम अच्छे से नहीं करती है, साफ कर इसको। जी माँ अभी करती हूँ। ठंडी बजती है। ठंडी बजने की आवाज। अरे पिंकी जी माँ आई। बाहर देखना कौन आया है। जी माँ अभी देखती हूँ। चाची जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ चाची जी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। हेलो पिंकी, कैसे हो? और यू? हेलो आई एम फाइन एंड यू? आई एम ओके। और बेटा तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं चाची जी, बस घर का काम। आइए चाची जी बैठिए। अरे शीला कैसी हो? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही हो? अरे उसे आगे बढ़ के कुछ नहीं करना, वो घर का काम ही संभालेगी। आजकल बेटियां क्या कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं करना लड़कियों ने, हमारा लड़का है ना यही सब करेगा। आपको आगे अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। आजकल जमाना संभालता रहा है। आपको आगे पढ़ाना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप उसको आगे पढ़ाएं। और मेरी रीना बेटी ने IAS में अपना नाम किया है, IAS की पढ़ाई कर कर। तो मैं भी आपको चाहती हूँ कि आपकी बेटी की ऐसा ही काम करे आगे। ठीक है। चलिए जी आपको। अरे पिंकी इधर आ। जी माँ आई। घर का काम मैं कर लूंगी, तो कॉलेज जा, ठीक है? जी माँ। लड़कियों ने ही देश को संभालना है। हमने इसलिए उससे आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आजकल महिलाएं क्या क्या कर सकती है। और उन्हें अभी देख लीजिए चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, वो भी एक महिला की ज्यादा उसमें हो रही है भूमिका। इसीलिए हमारा देश महिलाओं के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने 2001 में महिला जागरूक पारित किया है। हमसे बढ़ती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। सबके जीवन का आधार है वो, मत करना उस नारी का अपमान। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? महिला सशक्तिकरण से आशय महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य यह है कि जब महिला में बहुत क्षमता आ जाती है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन के सभी फैसले स्वयं ले सके और अपने घर और समाज से बंधनों से दूर हटकर अपने निर्णयों की स्वयं निर्माता हो। अब है महिलाओं की दशा। महिलाओं की दशा क्या है? मध्यकाल में महिलाओं की दशा बहुत ही बुरी थी। वह हर जगह बहुत ही महिलाओं की दशा बहुत ही बुरी थी। वह अशिक्षा और उनकी बालिका के कारण तो 4 द्वार में बंद रहकर रह गई। फिर उसके बाद ब्रिटिश काल में महिलाओं की थोड़ा सुधार आया, क्योंकि उस टाइम पे आंदोलन चले और महिला बाहर निकली और हर जगह बाहर निकली, तो उसमें थोड़ा सुधार आया। फिर स्वतंत्रता के बाद सुधार नहीं आया, और हाँ सरकार ने उनके लिए बहुत से कदम उठाए थे। शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनके लिए बहुत आगे प्रयास करेंगे। पर अभी भी महिला इतनी सशक्त नहीं है। हम महिला को बस नहीं मान सकते। महिला को सशक्त हम ना मानेंगे जब उन्हें किसी का डर ना हो, उन्हें समय का भय हो। क्योंकि आजकल सब बोलते हैं कि भाई अंधेरा हो गया, अब आपको घर आना चाहिए। मतलब महिला को ना समय का डर हो, ना किसी भी चीज़ का डर हो। महिलाओं की स्थिति सुधारने वाले समाज सेवक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे बहुत से समाज सुधारक हैं, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने 1829 में संयुक्त प्रथा का अंत किया और 1856 में हिंदू विवाह का भी इन्होंने बहुत आगे इनको लेके गए और महिलाओं में बहुत आगे अग्रसर काम करने के लिए बहुत काम किए। महिला को ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार ने बहुत से कदम उठाए थे। बेटी बचाओ, महिला हेल्पलाइन योजना, कन्याधन योजना,
उज्ज्वला योजना, नंदा देवी योजना, ऐसे बहुत से काम चलाए और बहुत से एक्ट भी पारित किए, जैसे समान परिश्रम की एक्ट और बाल 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 विवाह रोकथाम एक्ट 2006 में हुआ और ऐसे ही बहुत से एक्ट पारित किए। महिला शक्तिकरण का सशक्त माध्यम शिक्षा है। अगर हम किसी महिला को सशक्त माने तो शिक्षा है, तो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे मेन कारण शिक्षा ही है। अभी हम देखते हैं उत्तराखंड में उत्तराखंड की साक्षरता दर महिला की 80% है और 70% है और पुरुषों की 87% है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी इतना पीछे है। मतलब सोसाइटी को इतना ऐसा बना दिया है कि अभी इतना हो गया। महिला शक्तिकरण की मुख्य बाधा, उनमें मुख्य बाधा क्या है? सबसे मुख्य बाधा है दहेज प्रथा, जो कि बहुत आजकल देखने को मिलता है। कन्या भ्रूण योजना, कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता, कार्य प्रणाली में समान वेतन का होना, ऐसे बहुत से हम देखने को मिलते हैं। फिर महिला शक्तिकरण के मुख्य सुझाव। अगर हम महिला शक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सुझाव को भी देखना होगा, जिससे से और आगे अग्रसर कर सकें। तो महिला शक्तिकरण के सुझाव हैं जैसे कि सबसे पहले इसका मेन टॉपिक है शिक्षा का प्रसार, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं और जागरूकता लाना। महिलाओं में जागरूकता की बहुत कमी है, इसी की जागरूकता रहेगी तो बहुत आगे जा पाएंगी। उसके बाद रोजगार से ही महिला बहुत आगे रहेगी। रोजगार इसका बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और उसके बाद और रोजगार और और बस महिला एक बहन है, उसकी स्नेह करो। महिला एक पत्नी है, उसे प्रेम करो। महिला एक भाभी है, उसका आदर करो और सारी महिलाओं का सम्मान करो। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो अच्छे से चल जाएगी और कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने समय को अच्छे से सदुपयोग नहीं करें तो हमारा समय व्यर्थ हो जाता है और किसी समय को व्यर्थ ना जाए, इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले हमें टास्क बनाने चाहिए, गोल बनाने चाहिए। टास्क हमारे छोटे छोटे हो और इम्पोर्टेंट हो पहले हम उसे करें और फिर जो हमारी प्राथमिकता है हम उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट से और अगर हम समय पे कोई भी कार्य ना करें तो उससे हमें इफेक्ट पड़ता है, हमें टेंशन होती है और हम उसी काम के बारे में सोचते हैं कि वो टाइम पे नहीं हो पाया और बाकी काम होते हैं तो उनके सारे खराब हो जाते हैं। इसी वजह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के सबसे पहले है कि हम अपने इजी और इम्पोर्टेंट टास्क पहले करें, फिर जाके जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हम वो करें। अब मेरी टीम के बारे में लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इंग्लिश हमारी सेकेंडरी भाषा है। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो इंग्लिश का यूज़ करते हैं। एजुकेशन inner knowledge of good
English language, get a job. जैसे कि हम घूमने जाते हैं या और किसी भी मतलब कि कहीं और जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो मतलब कि हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें हिंदी आती है तो हमें इंग्लिश भी आए। तो हमें उसको समझने के लिए हमें इंग्लिश का ज़रूरी मतलब कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश ना हो तो हम दूसरे इंसान की भाषा नहीं समझ सकते, क्योंकि जब हमें इंग्लिश ही नहीं आएगी तो हमें उसका मीनिंग भी नहीं पता होगा कि वो बोलना क्या चाहता है। तो कहते उसे, तो हम एक छोटा सा नाटक करेंगे उसे। Good morning all of you, my ma'am and sir. My name is Deepika. English is an important learning, speaking. There are the English. अब हम एक छोटा सा नाटक करेंगे जिससे मतलब कि हम मतलब कि किसी और देश में जाके अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कैसे मैनेज करेंगे, या मतलब कि जैसे कि हम कैसे मतलब कि जॉब जाएं तो मतलब कि हमारे लिए क्यों इंग्लिश ज़रूरी है, या हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो क्यों ज़रूरी होती है। मतलब हम हिंदी भी तो बोल सकते हैं, बट हम एक नाटक करेंगे, छोटा सा नाटक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हम दिखाना चाहते हैं कि मतलब कि क्या होता है, मतलब कि क्यों ज़रूरी होती है हमारे लिए इंग्लिश। जैसे कि ये जॉब इंटरव्यू है, एक हम दिखाना चाहते हैं कि मतलब कि हिंदी और इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है। हम Dialogue. Come in. Please have a seat. Tell me about yourself. Melissa, are you not comfortable in this? आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं। So, what's your name? Tell me what you said. Okay. Thank you. जैसे कि आपने अभी इस नाटक के माध्यम से देखा कि ये हाई एजुकेशन होने के बावजूद भी इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हुई, तो इसलिए मैं रिजेक्ट हुई, और उसका एजुकेशन थोड़ा कम था तो वो सेलेक्ट हुई, बट क्योंकि उसे इंग्लिश में वो कंफर्टेबल थी, क्योंकि वो उसकी भाषा समझ सकी, और इसलिए उसने उसके आंसर का जवाब दिया। क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम अनकंफर्टेबल होते हैं, जिससे कि हमारी काफ़ी अच्छी मेहनत भी बेकार हो जाती है। अब हम एक थोड़ा सा छोटा सा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि मतलब कि हम किसी देश घूमने जाए तो मतलब कि हम दूसरों से बात करें, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी कैसे रहता है, हम ये दिखाएंगे। नहीं